discuss that what's the primary purpose of joint. Most of you have seen this type of joints. Movement joints are available in building, in roads, in highway, in structure, in bridges. The purpose, we'll discuss that one. There are majorly four types of joints. I'll explain you. So we'll discuss the definition, types of movement joints, and placement. As far as the definitions are concerned, movement joints are used in brick masonry to allow the movements and to avoid the cracking. Also, movement joints in building are incorporate due to the changes in volume of the building material, either by change in temperature. And movement joints can be properly designed, load-bearing or non-load-bearing components. First thing, uh, normally this movement joints are provided where there is a chances of differential shrinkage either due to temperature change or creep. रीजन क्या होता है कि जब डिफरेंट मटेरियल लेट्स से कंक्रीट है और उसके ऊपर ब्रिक वर्क की वॉल है, जिस तरह पैरापिट वॉल होती है टॉप के ऊपर आपके जो घर के, that is a different material, so there is a differential shrinkage between concrete and wall, brick wall. So obviously there is a chances of cracking and you should provide a joint there. Similarly, बहुत ज़्यादा बड़ा span हो जाए building का and maybe there is a chance that during weather change या temperature change के ऊपर आपका वो proper jointing वहाँ पर cracking आ जाए. So like in civil department if you move, तो उन्होंने एक building part को दूसरे building part से isolate किया हुआ है. That has also give us a margin और safety कि जिससे वो particularly एक दूसरे से safe रहते हैं और वो expansion contraction को control करते हैं. Next is movement joints जो है इसके अलावा bridges पे आपने देखा है whenever you go to bridges obviously आपने देखा होगा certain jugs होते हैं और उसके ऊपर कोई ना कोई steel की strips लगाई जाती है. That one normally this sort of a opening is provided between girders ताकि वो weather change में properly. So whenever there is a change in weather, there is a chances of change of differential shrinkage between the material, and in order to avoid the cracking phenomena, हम normally ये joint देते हैं. Types of joint, movement joints are of four types: expansion joint, control joint, which is called as contraction joint, building isolation joint, and construction joints. ये one by one discuss करते हैं. Expansion joints are provided to accommodate movements and it prevent cracking due to change in temperature, moisture, elastic deformation, and creep. Expansion joint may be horizontal or vertical. आपने रोड्स में, हाईवे में या ब्रिजेस में देखा हो तो इस तरह के एक्सपेंशन ज्वाइंट आते हैं कि मींस एक पार्ट को दूसरे पार्ट से सेपरेट किया गया विद दिस टाइप ऑफ जॉइंट, एंड नॉर्मली दिस गैप इज फिल्ड विद द प्रॉपर मटेरियल लाइक रबर मेम्ब्रेन या यूरेथीन शीट्स होती हैं, सिलिकॉन होते हैं जिससे, और सम टाइम इसके टॉप पे यहाँ पर ना स्ट्रिप भी लगा देते हैं. द पर्पस ऑफ स्ट्रिप इज दैट इट कैन नॉट अलाउ सम मटेरियल टू गो इनसाइड, वियर एंड टियर को उसके कॉर्नर भी टूटने देता, ट्रैफिक लोडिंग क्योंकि बैक लोडिंग आती है. आल्सो इट अलाउ द एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन. सो नॉर्मली यहाँ पर जिस तरह लिखा हुआ एक्सपेंशन जॉइंट्स are provided to accommodate movements and prevent cracking due to change in temperature, moisture, elastic deformation, या creep. So this is an example of expansion joint. Now what is contraction joint? These are the joint provided to create a plane of weakness with reinforcement. ठीक है? Due to volume change resulting from shrinkage, a vertical opening is provided in an elastic material. आपने बिल्डिंग में देखा हो एक्सपेंशन जॉइंट कहाँ आते हैं, आप सिविल डिपार्टमेंट में देखो थ्रू आउट द बिल्डिंग वर्टिकली गैप है. मतलब सिविल डिपार्टमेंट एज अ बल्क यूनिट नहीं बना हुआ. इफ यू सी तो एक बिल्डिंग पार्ट दूसरे बिल्डिंग पार्ट से आइसोलेटेड है. सो दीज जॉइंट्स आर प्रोवाइडेड टू क्रिएट अ प्लेन ऑफ वीकनेस विद रिइंफोर्समेंट. ठीक है, ऑब्वियसली रिइंफोर्स्ड स्ट्रक्चर है ड्यू टू द वॉल्यूम चेंज रिजल्टिंग फ्रॉम श्रिंकेज, अ वर्टिकल ओपनिंग इज प्रोवाइडेड and it allows to move the one part of the building with the other. Third one is building expansion or isolation joint. These are joint provided to separate the building from rest of the building due to the loading in this section. It will not affect the rest of the building. Means अगर आप ये देखो building isolation joints कहाँ पर आते हैं? It means one part of the building is completely isolated with the other. Isolation joint slab is isolated from the wall. इसकी आपको सिंपल एग्जांपल दूं तो अगर आपने पैरापिट वॉल देखी हो, पैरापिट वॉल स्लैब के ऊपर फास्ट की जाती है. दिस इज स्लैब एंड ऑन टॉप ऑफ इट पैरापिट वॉल. सो द जॉइंट व्हिच इज कॉल्ड एज बिल्डिंग आइसोलेशन जॉइंट. सेम इज द केस अगर आप ये कॉलम में स्लैब के साथ देखो तो इसके ऊपर जो जॉइंट आएगा
that is isolation joint. इसका purpose क्या होता है? These joints are provided to separate portion of a building from the rest of the building. एक building part को दूसरे building part से isolate करते हैं. और normally अगर आपने देखा हो तो parapet wall क्योंकि दोनों की expansion फर्क होती है walls की along with the concrete slabs, so always there is a crack. आपने फ्रंट पे देखा हो तो अक्सर घरों की parapet wall पे cracking आती है. Even civil department में भी cracking आई हुई है. In order to avoid that, the better is either you use a material which is of same. अगर slab के concrete की है तो उसकी parapet भी concrete की बनाओ. Later on there will be no expansion of differential shrinkage और उसकी वजह से उसकी जो है हम expansion contraction को control कर सकेंगे and we can control the cracking. Otherwise बहुत सारे second options भी आती है. Sometimes people use a wire gauze at the joint और इस तरह के material ताकि उसकी cracking को रोका जा सके. It is mainly used जो construction last one is construction joint. इसकी heading यहाँ missing है, heading को डाल लेंगे. Next figure पे ये दिया हुआ है. Construction joint के it is mainly used in concrete construction where construction work is stopped for a time being या for certain purpose. Let's say अगर मैं आपको simple example दूँ, if a slab is casting, slab the cast और अगर वो किसी भी वजह से slab की casting रुकती है, next day we have to start the work. So that is called as construction joint. Most of the time, it is our preference that we cast the slab in a one run or single run. ऐसे नहीं होता कि आधी slab आज cast कर ली, आधी slab कल cast करें. Obviously, that joint is very much dangerous. It should be casted in one single run. लेकिन किसी भी वजह से reason से बाज़ casting रुक सकती है. Although if the slab is so much huge, concrete slab, तो even now we have available facility of a रेडी मिक्स concrete तो हम उससे भी यूज करके कर सकते हैं. बट किसी भी वजह से एनी रीजन की वजह से लेट्स से स्टार्ट हो गई एंड दे पोर्ड ऑलमोस्ट 70% ऑफ द स्लैब, तो वो उसी को सेव करते हैं और रिमेनिंग को कहते हैं कि ये वो अभी कास्टिंग रोक दी जाए. सो ऑब्वियसली नियर दिस सर्फेसेस, ये जहां पर वो कास्टिंग रोकी गई थी, whenever we start the casting next day, so first thing is to provide a bond of these bars with a new reinforcement bar. Second is ये वो सिनेरियो नहीं शो कर रहा है, ये वो सिनेरियो शो कर रहा है कि आपने बनाई इतनी स्लैब थी, लेटर ऑन को एक्सटेंशन करना चाह रहे हो. एक्सटेंशन मींस ऑब्वियसली यू हैव टू प्रोवाइड either a new reinforcement with this one and this should be connected either with epoxy or you can say with welding, and after that this concrete surface should be rough. इसको ऐसे स्टेट में नहीं रहने देंगे, इसको एक्सपोज करेंगे, रफ करेंगे, so that and we should use a bond on the surface so that a new concrete can make a good bond with the older one. वो आपने देखा नीरू वगैरह भी फेंक लेते हैं स्लरी सीमेंट की. Yes, better is to be use any bonding agent. So first thing is ये तो कंस्ट्रक्शन जॉइंट के. कंस्ट्रक्शन जॉइंट के आगे एग्जांपल्स भी है, वो आपसे डिस्कस करते हैं. नॉर्मली before going that one, expansion joint material, we should fill those joint with any material. रीजन उसका यही होता है, जिस तरह ब्रिजेस में भी देखो तो वो उसको क्या प्रॉपर सीलेंट्स वगैरह यूज करते हैं. टिपिकल डिटेल ऑफ एक्सपेंशन जॉइंट इज सीलेंट्स आर यूज्ड ऑन द एक्सटीरियर फेसेस, a foam pad, neuropan pad or lower water stop is used inside. Sealant must conform ASTM standard. Many sealants are available in the market, but elastomeric sealants are the best one. They are highly elastic and they have a high resistance to weather. मार्केट में वैसे सीलेंट्स तो बहुत सारे अवेलेबल है. आउटसाइड पे हम उसको सीलेंट यूज करते हैं, इनसाइड पे ये पैड फॉर्म्स यूज करते हैं, एंड आल्सो सीलेंट कंफर्म दिस स्टैंडर्ड. एंड बेस्ट इज टू यूज सच अ सीलेंट जो कि हाई रेजिस्टिविटी या हाई रेजिस्टेंस दे अगेंस्ट वेदर. सो नेक्स्ट इज एक्सपेंशन जॉइंट की टाइप्स. मटेरियल की यूरेथीन है, सिलिकॉन है, पॉलीसल्फाइड है, और बेकर रोड्स के ऊपर आमतौर पे वो स्ट्रिप्स यूज करते हैं of 6 mm thickness और ½ inch depth की. ठीक है. Next is as far as the expansion joints are concerned, specific expansion joints is decided either by expected wall movement, joint material या compressibility. ये भी डिपेंड करता है कि आपने expansion joint, पहले तो हमने वो डिस्कस किए कि वो कितनी मूवमेंट्स उसमें एक्सपेक्टेड है, जॉइंट मटेरियल की कंप्रेसिबिलिटी और एक्सटर्नल फैक्टर लाइक वेदर चेंजेस और इन चीज़ों पे हम डिपेंड करते हैं एक्सपेंशन जॉइंट्स का. हम डिसाइड करते हैं किस टाइप का हमने देखे. प्लेसेस ऑफ एक्सपेंशन जॉइंट्स लाइक आई हैव डिस्कस रोज में आता है. अगर वर्टिकली देखें तो कॉर्नर्स पे, यानी कि एक वॉल दूसरे वॉल से जब मिले तो वहाँ कॉर्नर पे भी एक्सपेंशन जॉइंट आता है. ऑफसेट पे, जंक्शंस पे जहाँ 2-3 वॉल्स आके मिले, पैरापिट वॉल पे यानी कि वॉल और स्लैब का जो जॉइंट है
वहाँ एक्सपेंशन ज्वाइंट आता है, हॉरिजॉन्टली आता है, वर्टिकली. So it can occur both horizontally and vertically. And this expansion joints, obviously, this should be properly designed. अगर आपका वो same material हो, so it better is कि उसमें दोनों में expansion contraction same होगी और वो उस चीज को wide कर सकेंगे. If it is different, so you have to decide according to that one. Next is contraction. या अभी थोड़ी देर पहले control joint पढ़ा है, इसकी भी different types है. Complete contraction, partial contraction, dump joint, along the length, water storage tank. अच्छा, आपने देखा हो कंप्लीट कंस्ट्रक्शन ज्वाइंट्स, कंस्ट्रक्शन ज्वाइंट्स जो है कि अगर आपकी एक पुरानी बिल्डिंग बनी हुई थी उसके साथ बिल्कुल एक न्यू बिल्डिंग बनाना चाह रहे हो, ऑब्वियसली वो बिल्कुल न्यू कंस्ट्रक्शन है, उसका पुरानी के साथ कोई बॉन्ड नहीं है, सो कंप्लीट कंस्ट्रक्शन ज्वाइंट होगा. पार्शियल मींस के कुछ पोर्शन कास्ट किया गया था और उसकी फर्दर एक्सटेंशन करना चाह रहे हो. लेट्स से एक स्लैब बनी हुई थी एंड यू वांट टू टेक सम ऑफ द कैंटिलीवर पार्ट आउट ऑफ दैट वन. ऑब्वियसली व्हाट यू हैव टू डू, you will first you will take the reinforcement out. आप reinforcement को open करोगे, then make a bond of new with the old reinforcement, and at the end obviously जब reinforcement complete हो जाएगी तो you pour the casting. वो casting करोगे तो later on it make a bond and that is called as partial construction joint. Dump joints के sometime हम dump joints में artificially groove बनाते हैं ताकि वो उसको एक्सपेंशन या कंट्रैक्शन को अलाउ करे along the width भी, along the length भी. और वाटर टैंक में अगर आप देखो तो मोस्ट ऑफ द टाइम जो घर की वाटर टैंक है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द वाटर टैंक व्हिच इज कास्टिंग सोसाइटी में, जो छोटे वाटर टैंक घर में बनते हैं 500,000 गैलन के, इन दैट फर्स्ट यू कास्ट द स्लैब, बॉटम स्लैब, उसका फ्लोर कास्ट करते हो, देन टेक द डबल बार्स आउट फ्रॉम दैट वन, आप रिइंफोर्समेंट आउट कर लेते हो, नेक्स्ट डे पुट द फॉर्मवर्क एंड देन कास्ट द आउटसाइड वॉल्स, उन वॉल्स को फॉर्मवर्क के बीच में कास्ट करते हो, एंड दैट वो जो ज्वाइंट आता है स्लैब का बॉटम फ्लोर का विद द वॉल्स, दैट इज कॉल्ड एज वाटर स्टोरेज टैंक. ऑब्वियसली वो भी कंस्ट्रक्शन रुकती है थोड़ी देर के लिए, दैट इज द कंट्रोल और कंस्ट्रक्शन ज्वाइंट्स. सो कंस्ट्रक्शन ज्वाइंट्स नॉर्मली स्लैब और कॉलम्स में आते हैं, यानी एक कॉलम का दूसरे के साथ. सो दीज आर सम लोकेशंस. अगर आपसे बात करूं एक्सपेंशन ज्वाइंट्स की, कॉन्ट्रैक्शन, कंट्रैक्शन और बिल्डिंग आइसोलेशन, सबकी टाइप्स डिस्कस किए एंड व्हाट आर द लोकेशन फॉर देम. सो this is a small topic. Is there any question in today's lecture? अगर आपको कुछ चीज समझ ना आई हो तो इसको पढ़ लो एक दफा, then you may ask. हाँ जी, any question? You there? सर वो पीछे वो जो क्रीप जॉइंट्स एक लिखा हुआ था, वो क्या चीज है? क्या लिखा हुआ था? स्टार्ट वाली स्लाइड्स में एक क्रीप का लफ्ज आ रहा था. क्रीप और श्रिंकेज. अच्छा, ये आप, हाँ बिल्कुल, क्रीप और श्रिंकेज है. श्रिंकेज तो आपको पता होगा, नॉर्मली श्रिंकेज फिनोमेना अकर ड्यू टू द वाटर वेपोरेशन. होता है कि जब नई कंस्ट्रक्शन कास्ट करते हो ना, नई कंस्ट्रक्शन बनाते हो, तो ऑब्वियसली उसमें से मॉइस्चर वेपोरेट होता है एंड इट्स वॉल्यूम ट्राई टू रिड्यूस, दैट इज कॉल्ड एज श्रिंकेज. ठीक है, और ये श्रिंकेज जो है, ये श्रिंकेज सिंपल श्रिंकेज कहलाती है. और क्रीप क्या है कि अंडर एप्लीकेशन ऑफ लोड, लेट्स से एक कॉलम है, उसके ऊपर स्लैब का लोड है एंड दैट रेस्ट देयर फॉर नंबर ऑफ इयर्स, तो उसमें जो थोड़ी डेफॉर्मेशन आती है विद द पैसेज ऑफ टाइम अंडर सस्टेन्ड लोडिंग, दैट इज कॉल्ड एज क्रीप. क्रीप की डेफिनेशन पढ़ोगे ना, दैट इज बेसिकली अ डिफ्लेक्शन और डेफॉर्मेशन ड्यू टू सस्टेन्ड लोडिंग. एंड इट इज नॉट लाइक दैट कि जी कॉलम के ऊपर स्लैब का लोड 10 साल के लिए पड़ा रहा है तो कॉलम 2 फुट छोटा हो गया. नॉर्मली इट इज इन मिलीमीटर्स, सो दैट value of change is called as creep under sustained load. Okay sir. Any other question? Is there a question? सर वो जो अंडर पिनिंग वाला उसमें से एक क्वेश्चन है. हाँ बोलो बोलो. सर वो जो आप अंडर पिनिंग करते हैं और जब डिगिंग करते हैं सारी नीचे से बिल्डिंग के, तो वो तो सर सेटल नहीं हो जाएगी जब तक वो लगाएंगे अंडर पिनिंग्स? नहीं, देखो ना बेटा, वो मैंने लास्ट टाइम ही बताया था कि हम जो टॉप वाला है उसको पहले सपोर्ट करते हैं नीडल बीम्स के ऊपर. ठीक है, उसको पहले सपोर्ट करेंगे, अदरवाइज तो आपने जहां पर आपने कंपैक्शन शुरू, एक्सकवेशन शुरू नहीं की, सारा का सारा स्ट्रक्चर ही बैठ जाएगा वो तो. ठीक है, उसका क्या करते हैं कि उसके ऊपर एक नीडल बीम लगाते हैं जिससे ऊपर वाला जितना बिल्डिंग का लोड है वो सारा का सारा साइडों पे तो सॉलिड पोर्शन पे उसको स्प्लिट करते हैं.
फिर कंस्ट्रक्शन करते हैं और अंडरपिनिंग में आपने देखा हो तो या तो पिट मेथड या पाइल मेथड करते हैं, तो उसको जितनी डेप्थ तक जाना हो पाइल कास्ट कर लेते हैं या पिट करके नई कॉलम नई फाउंडेशन बनाते हैं जहां तक आपकी जमीन थोड़ी हार्ड सेटअप पे आए, और फिर ओल्ड और न्यू का बॉन्ड बना देते हैं। लेकिन ये कहें कि ऊपर वाले स्ट्रक्चर को सपोर्ट ना करो, एक्सकवेशन करो, वो तो गिर जाएगा। सर ठीक है सर। सर इसमें अंडरपिनिंग में फॉर एग्जांपल अगर तो हमारे पास नेट या रैफ्ट फाउंडेशन हो, उधर तो हम उसे नीचे से मतलब सपोर्ट कर लेंगे, लेकिन अगर सर कुछ भी इस तरह का ना हो, तो अगर वॉल को हम दो डिफरेंट लोकेशन से लाइक तकरीबन 5 फुट के डिस्टेंस से करें, तो वो आपस में शीयर फोर्स की वजह से वो उसमें मसला नहीं आएगा कि मतलब के चांसेस होते हैं, बात ठीक है आपकी, बात ठीक है, चांसेस होते हैं उसमें कि वो ब्रेक कर दे, उसमें उसका स्पैन बहुत रिड्यूस करना पड़ेगा, या नीचे थ्रू आउट उसको बड़ी क्लोज इंटरवल पे बीम्स देने पड़ेंगे। अदरवाइज जहां पर तो नीचे प्लिंथ बीम है या नीचे मैट या रैप फाउंडेशन है, उसमें तो आप उसको इजीली सपोर्ट कर सकते हो। ये बात ठीक है कि सिंपल ब्रिक वर्क की फाउंडेशन है तो वो थोड़ा डेंजरस होता है कि उसको लार्जेस्ट स्पैन पे हम सपोर्ट नहीं कर सकेंगे, हम बड़े रेगुलर इंटरवल पे उसको सपोर्ट करेंगे तो वो उसके ऊपर रेस्ट करेंगे। बिल्कुल ठीक है, अदरवाइज वो शेयर की वजह से बॉल गिर सकती है। सर उसके अंदर अगर हम आर्टिफिशियली पहले बीम दे लें और उसके नीचे फिर दोबारा से अलग से बीम का एक तरह से स्ट्रक्चर बना लें कि वो बिल्कुल ऐसे भी होता है कि वो स्टील का बीम या सपोर्ट्स भी दी जाती हैं आर्टिफिशियली ताकि उसको सपोर्ट करें। ऑब्वियसली जहां पर करना जरूरी है वहां हर तरह का करते हैं, क्योंकि अगर नहीं करेंगे तो वो स्ट्रक्चर गिरेगा, ठीक है। तो अदरवाइज उसको करने के लिए आपको बेशक रेगुलर इंटरवल पे वो दिया जाए, या हम उसमें ये करते हैं कि वो बीम ले करके उसके ऊपर वो पाइल टाइप ड्रिवन पाइल टाइप कॉलम नीचे रख कर देते हैं उसके नीचे रेगुलर इंटरवल पे, ताकि काम करें और उसके बाद उस पर मूव कर दें। वो बहुत सारी चीजें उसमें हो सकती है, डिपेंड करता है कि किस लोकेशन पे। ओके सर। एनी अदर किसी और क्वेश्चन? अगर नहीं है तो फिर इसको वाइंड अप करें, और प्लीज ये जितने अभी तक 3 लेक्चर हो रहे हैं इन सबको पढ़ो। अभी फुल कोर्स आपका है जिसमें से पेपर आने हैं इंशाल्लाह, तो लेट्स सी अगर यूनिवर्सिटी ओपन होती है, अदरवाइज ऑनलाइन होगा जो भी होगा। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं मेरे से, अदरवाइज हम इसको वाइंड अप करते हैं। सर सिलेबस कम करें, सिलेबस इतना ज्यादा कैसे होगा सर? कोई बात नहीं, हम भी देते रहे हैं, इतना ज्यादा सिलेबस